Hello dear students, the topic for today's lecture is geometric design of track. This is your unit 3rd. So in the geometric designing of railway track, we will be studying the designing of the following components. That is, first one is the gradient, then the speed of train, then the radius or degree of the curve, then cant or super elevation, then last one is the curves. So let's study first about the gradients. What is gradient? Gradient is any change of the track from the level. मीन्स जो आपका रेलवे ट्रैक है, अगर वो स्ट्रेट है और कहीं पे वो स्ट्रेट से डिविएट होके राइज या फॉल हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट. Gradients are of two types, rising gradient or falling gradient. So if the track is rising in the direction of movement, then it is a rising gradient, and if the track is falling in the direction of movement of vehicle, then it is a falling gradient. You can see both rising and falling gradient in this figure. Gradient is generally measured by the extent of rise or fall in 100 units horizontal distance. For example, if there is a gradient of 1 in 100, so that means that there is a rise or fall of 1 meter in 100 meter horizontal distance. मतलब 100 meter के horizontal distance पे 1 meter का rise या fall है. So generally we designate a gradient in this form, that is 1 in n form, right? Now let us know what is the necessity of providing a gradient. So basically what happens, जो आपका natural contour होता है किसी भी place का, वो ज़रूरी नहीं है throughout the distance straight रहे. It can be rising or falling. तो अगर contour जो level है वो rise हो रहा है, तो वहाँ पे आपको cutting करनी पड़ेगी, एंड जहाँ पे falling contour है वहाँ पे आपको filling करनी पड़ेगी. So इसलिए ये जो cutting and filling की जो cost होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. So that is why ऐसी places पे हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, सो एज टू रिड्यूस दिस कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन एंड फिलिंग. सो दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ जनरली प्रोवाइडिंग ग्रेडियंट. मतलब जहाँ पे रोड लेवल नहीं रहती आपकी, वहाँ पे हम उस पर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स. The first one is ruling gradient. It is the maximum gradient which is allowed on a railway track. Means railway track में जो maximum gradient देते हैं उसे कहते हैं ruling gradient. और यही वो gradient होता है जो decide करता है कि हमारा जो रेलवे का इंजन है ट्रेन का, वो कितना लोड को होल्ड कर सकता है या कैरी कर सकता है. सो जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, दे डू नॉट स्पेसिफाई एनी फिक्स रूलिंग ग्रेडियंट, क्योंकि जो वेरिंग नेचर है कंट्री का एंड स्पीड और ट्रैफिक ये सब डिफरेंट है थ्रू आउट द कंट्री. तो दैट इज़ वाई एक पर्टिकुलर रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू नहीं स्पेसिफाइड है. बट जनरली जो वैल्यू फॉलो की जाती है वो होती है, अगर आपका प्लेन रीजन है तो 1 in 150 से लेके 1 in 200 के बीच का ग्रेडियंट हम देते हैं रूलिंग ग्रेडियंट. एंड इफ द टेरेन इज़ हिली, then we provide a ruling gradient of 1 in 100 to 1 in 150. This is a general value, not a fixed specified value, right? The next type of gradient is momentum gradient. So these gradients although are steeper than the ruling gradient, but they do not determine the maximum load of train. Means ये although ruling gradient से steeper होते हैं, but ये they do not determine कि train जो maximum load carry करी है वो सिर्फ आपका ruling gradient ही determine करता है, although they are steeper than the ruling gradient. Now you must be thinking that why we are providing a gradient that is steeper than the ruling gradient. So this is under some certain special circumstances, right? ये हम हर जगह provide नहीं करते, but it is provided in valley regions where a falling gradient is followed by a rising gradient. सपोज अ ट्रेन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और ये जो ब्लू से डॉटेड लाइन्स है ये हमारा रूलिंग ग्रेडियंट है. बट आप देख सकते हैं हमने इससे भी स्टीप ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रखा है विच इज़ मोमेंटम ग्रेडियंट. सो व्हाट हैपेंस एट सच लोकेशंस, सपोज अ ट्रेन इज़ कमिंग एट दिस पॉइंट, एंड जब ये नीचे डाउन फॉलिंग ग्रेडियंट को क्रॉस करेगी, तो वाइल क्रॉसिंग दिस फॉलिंग ग्रेडियंट इट विल अटेन अ सर्टेन मोमेंटम. अब ये जो मोमेंटम अटेन किया उसने, ये इसको एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा सो दैट इट कैन ईजिली क्रॉस दिस राइजिंग ग्रेडियंट. तो दैट इज़ वाई इसी टाइप के ग्रेडियंट को मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं. मीन्स इन ग्रेडियंट में आने से पहले ही, आते ही जो ट्रेन है वो एक सफिशिएंट मोमेंटम अटेन कर लेती है सो दैट वो उसको इजीली क्रॉस कर जाए. तो ऐसे केसेस में हम रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देते हैं, एंड इसी ग्रेडियंट को हम मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं. The third type of gradient is pusher or helper gradient. So this type of gradient is provided in mountainous terrains, which is generally steeper than the ruling gradient, and it is provided so as to reduce the length of the track. मतलब mountainous region में ट्रैक की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम रूलिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर ग्रेडियंट को प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस ग्रेडियंट इज़ नोन एज पुशर ग्रेडियंट. वाई इट इज़ नोन एज पुशर ग्रेडियंट? सो व्हाट हैपन्स, जब हम रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं
तो एक ही लोकोमोटिव ट्रेन को कैरी करने में केपेबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव या इंजन की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्रेन को स्टीपर ग्रेडियंट पे कैरी कर सके। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। मतलब इस ग्रेडियंट पे हम एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव या इंजन प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो ट्रेन है उस स्टीपर ग्रेडियंट से, जो कि रोलिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा स्टीप है, उसमें आराम से ईजिली पास हो जाए। तो दिस इज़ योर पुशर और हेल्पर gradient. The fourth and the last type of gradient is gradient in station yards. So these are basically the gradients which are provided at the station. Now the gradients provided at the station should not be much large and they should be sufficiently low due to the following reasons. द फर्स्ट रीज़न इज़ व्हाट हैपन्स कि जब आपकी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड किया तो इट माइट मूव ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रोवाइड सफिशेंटली लो ग्रेडियंट. द अनदर रीज़न इज़ टू प्रिवेंट एडिशनल रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट ऑन द स्टार्टिंग व्हीकल. मीन्स जब आपकी ट्रेन स्टार्ट करी है तो हाई ग्रेडियंट क्या है, उसे बहुत एडिशनल रेजिस्टेंस दे सकता है जिससे कि उसे मूव होने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रोवाइड सफिशेंटली लो ग्रेडियंट इन स्टेशन. So the specified value for the maximum gradient permitted in station is 1 in 400. हावेवर हमें एक मिनिमम ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करेंगे स्टेशन में. सर्टेन मिनिमम ग्रेडियंट इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू. तो दैट इज़ वाई यही मिनिमम ग्रेडियंट होता है 1 in 1000. मीन्स स्टेशन पे आप बहुत हाई ग्रेडियंट भी नहीं अलाउ कर सकते, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो है 1 in 400 का है. एंड बहुत लो ग्रेडियंट भी नहीं अलाउ कर सकते, मीन्स प्लेन सरफेस नहीं रख सकते बिकॉज ड्रेनेज करना होता है वाटर का. तो एक मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ 1 in 1000 इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट स्टेशंस. So these were the four different types of gradients. Now there is one more topic, grade compensation on curves. So what happens whenever a train going on a straight track faces a particular gradient, so वो gradient उसके movement को एक particular resistance offer करता है. और अगर ये ग्रेडियंट कर्व पे लोकेटेड है तो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाएगा ड्यू टू कर्व. सो दैट इज़ वाई एट सच लोकेशंस वी नीड टू रिड्यूस अ ग्रेडियंट सो दैट जो व्हीकल है उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड हो. सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेड कंपेंसेशन ऑन कर्व्स. मतलब कर्व्स पॉइंट पे हम ग्रेडियंट को रूलिंग ग्रेडियंट ना प्रोवाइड करते हुए थोड़ा उसे रिड्यूस करते हैं. तो कितना रिड्यूस करते हैं, सो इट इज़ स्पेसिफाइड बाय द रेलवेज फॉर ब्रॉड गेज. अगर हमारा ब्रॉड गेज ट्रैक है तो वहाँ पे 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, मतलब जितनी डिग्री ऑफ कर्व है उसका 0.04% पर डिग्री. या फिर अगर हम रेडियस के टर्म्स में देखें तो 70/r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स. सेम फॉर मीटर गेज जो हम ग्रेड कॉम्पेंसेशन करते हैं वो होता है 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, या फिर रेडियस के टर्म्स में 52.5/r से. और नैरो गेज में हम जो कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कितना ग्रेडियंट हम कम करते हैं, वो होता है 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस के टर्म्स में 35/r. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू. शॉर्ट न्यूमेरिकल में कम ऑन दिस दैट व्हाट शुड बी द ग्रेड कॉम्पेंसेशन ऑन कर्व. कर्व का आपको डिग्री दिया रहेगा तो उसके बेसिस पे ही आप ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए ग्रेड कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. So this was all about the topic gradient. Hope it is clear to you. You may ask any doubt. Thank you.